students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. पाते हैं कुछ गुलाब, चट्टानों में भी परवरिश और पत्थरों से भी आती है खुशबू कभी कभी. ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है सुब्रत बागची. Go Kiss the World is a lesson, a chapter about a person who came across, who rose against all oddities, a man of simplicity, a man of great achievement. Let us talk about accomplishment to his credit through this chapter. Let us talk about Subrata Bagchi's autobiographical experiences with the help of this extract from the book Go Kiss the World. Subrata Bagchi, born on 31st May 1959, is an Indian entrepreneur and business leader. He is the co-founder of Mindtree and business author. Bagchi was born to Makhan Gopal Bagchi, Odisha, where his father was a junior government servant. एक जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट के पुत्र होने के बावजूद भी सुब्रत बागची ने अपनी ज़िंदगी में क्या मिसाल कायम की है और क्या कमाल किया है, इसके के बारे में हम इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे. यह कहानी नहीं है, यह हकीकत है जो सुब्रत बागची ने अपने होते हुए इस बात को उन्होंने साबित करके बताया. He grew up in Odisha, moving from place to place because of the nature of his father's job. He has narrated the story of his life in his book Go Kiss the World. सुब्रत बागची खुद ही Go Kiss the World इस किताब में अपनी कहानी को बयां करते हैं, कुछ जिंदगी की हकीकतों को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं. He began his life as a clerk in the government office. सुब्रत बागची ने खुद अपनी जिंदगी की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क के बतौर की. Went to become a management trainee with the DCM group and eventually found his life calling with the IT industry when fourth generation computers came to India in 1981. His longest period was with Wipro, where he became the chief executive of Wipro's global R&D before working for Chairman Azim Premji as corporate vice president mission quality. एक सिंपल गवर्नमेंट क्लर्क के बतौर जिंदगी की शुरुआत करने वाले सुब्रत बागची रिसर्च एंड डेवलपमेंट विप्रो के ग्लोबल में एज ए चेयरमैन और अजीम प्रेमजी कॉरपोरेट में वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे अलग अलग मिशंस पर शायद उन्होंने अपनी कामयाबी को साबित करके अपने हुनर का लोहा मनवाया है. He left Wipro in 1998 to join Lucent Technologies. He left Lucent a year after to co-found Mindtree in 1999 along with 9 other co-founders. Mindtree is 1 billion global IT service company with approximately 20,000 plus people. It is listed at the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange in India. On May 1st, 2016, at the invitation of the Chief Minister of Odisha, he took one full-time role of a chairman, Odisha Skill Development Authority, in the rank of status of a cabinet minister at an usual salary of ₹1. अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी सादगी के लिए जाने वाले सुब्रत बागची ने कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे का एक ओहदा ओडिशा गवर्नमेंट का, जो चेयरमैन का दर्जा है ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी में, मात्र ₹1 की सालाना आय के ऊपर गवर्नमेंट का ये न्योता भी उन्होंने स्वीकार किया. अपनी कामयाबी तकरीबन 100 करोड़ रुपए के कंपनी का निर्माण और फिर भी ₹1 सिर्फ गवर्नमेंट से मुआवजा सुब्रत बागची के महान होने में और बड़े होने में, ये माइलस्टोन जो उन्होंने स्थापित किया है, सबूत है इस बात का कि सुब्रत बागची आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं. पर ये ज़मीन से जुड़ा उनके ज़िंदगी में आया कहाँ से? कौन था जिसने इतने बेहतरीन बीज उनके
चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में बोए, इसी का वर्णन सुब्रत बागची अपने इस कहानी के माध्यम से करते हैं। Let's talk about his personal experiences. Go kiss the world. There were 5 brothers in the family and Subrata was last child. परिवार में 5 भाई और सुब्रतो सबसे छोटे थे। His father was a district employment officer in Koraput, Orissa. There was no electricity, no primary school nearby, and water did not flow out of tap. इलेक्ट्रिक नहीं, प्राइमरी स्कूल भी नहीं और नलों में पानी भी नहीं। ऐसे परिस्थितियों में सुब्रत बागची अपने पिता के साथ उड़ीसा के इस इलाके में रहते थे। Therefore, he could not go to school until the age of 8, और यही वजह थी पिता की बार बार होने वाली ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र के चक्कर में पूरे परिवार का होता हुआ चक्कर, इस चक्कर में सुब्रत बागची 8 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं जा पाए। एंड ही वॉज होम स्कूल्ड, और 8 साल की उम्र तक सारा स्कूलिंग घर पे ही हुआ। हिज फादर यूज्ड टू गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर। हर साल पिता की नौकरी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती थी। द फैमिली बिलोंगिंग्स फिट इनटू द बैक ऑफ जीप। परिवार का जो भी साजो सामान था बस एक जीप में समा जाए, इतना ही। सो द फैमिली मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड विदाउट एनी ट्रबल। जरा सा सामान, जरूरतें अपनी सीमित कर ली परिवार ने। जब भी ट्रांसफर होती जीप में अपना सामान लाद लेते और आसानी से ट्रांसफर हुई नई जगह पर पहुंच जाते। His mother would set up an establishment and gates use going। और माँ को आदत हो गई थी अपनी घर गृहस्थी कहीं पर भी उठाकर बसाने का, उनको शायद अभ्यास हो गया था। Mother was from East Bengal. She was a matriculate when she married his father, and foundation of values provided by the family made him successful man। ये इम्पॉर्टेंट बात सुब्रत बागची यहाँ पर नमूद करते हैं कि घर से, परिवार से मिले हुए संस्कारों से ही वो आज एक कामयाब इंसान बन पाए हैं। A district employment officer, his father was given a jeep by the government। पिता को एक जीप मिली थी सरकार की तरफ से, but his father refused to use it to commute to the office। पर पिता उस जीप से ऑफिस तक नहीं जाते थे। He believed that it was not his jeep but the government jeep। कितने लोग ये सोच पाते हैं कि सरकार के द्वारा दी गई ऑफिस के काम के लिए जीप सिर्फ सरकार की है, अपने पर्सनल कामों के लिए नहीं है। His father also made sure that family never sat in the government jeep। इतना ही नहीं, सुब्रत बागची के पिता ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि परिवार भी बेमालूम या बेवजह इस जीप से सफर ना करे। His father also made sure that family never sat in the government jeep। They could sit in it only when it was stationary। जब कभी सामान ऑफिस का कई फाइलें वगैरह लाद कर ले जानी होती थी, उसी समय अगर चाहे तो परिवार के कुछ सदस्य बैठ सकते थे, बस इतना ही वो बैठना था। A lesson that corporate managers learn the hard way, some never do। जो सबक पिता ने अपने इस सिंपल से उदाहरण से दिया, शायद कारपोरेट में काम करने वाले बड़े बड़े सूरमा भी इस चैप्टर को दोहरा नहीं पाएंगे इतने आसानी से। सुब्रत बागची के पिता ने ईमानदारी का पाठ सुब्रतो को बचपन में ही पढ़ा दिया। द ड्राइवर ऑफ द जीप वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। दूसरे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुब्रतो मेंशन करते हैं, जो जीप का ड्राइवर उनके घर में था उसे भी अदब और रिस्पेक्ट दिया जाता था। चिल्ड्रन वर टॉट नॉट टू कॉल हिम बाय हिज नेम, कॉल्ड हिम दादा इन पब्लिक और प्राइवेट। क्या सबक दिया माता पिता ने, घर के ड्राइवर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देने का जितना घर के सदस्य को देते हैं। और घर हो या बाहर की पब्लिक प्लेस हो, ड्राइवर को भी दादा के नाम से ही बुलाना, ये संस्कार सुब्रतो को घर से ही मिलते। माँ बाप ही दे सकते हैं ऐसे संस्कार, किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे संस्कार नहीं मिलते। When he owned a car and kept a driver by the name of Raju, he told the same lesson to his 2 small daughters। अपनी
आगे की जिंदगी में जब सुब्रतो बागची अपने पैसे से कार खरीदते हैं और राजू नामक एक ड्राइवर रखते हैं, यही अध्याय उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। दोनों बेटियों को घर के ड्राइवर को अदब से बात करने के लिए, रिस्पेक्ट से बात करने के लिए सिखाया। माँ बाप ने दिया हुआ यही दस्तावेज उन्होंने अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को दिया। टू हिम द लेसन वॉज सिग्निफिकेंट। उनके लिए यह अध्याय बहुत बड़ा था, ये सबक, ये सीख बहुत बड़ी थी। यू ट्रीट स्मॉल पीपल विथ मोर रिस्पेक्ट देन हाउ यू ट्रीट बिग पीपल। जैसे हम बड़े ओहदेदार लोगों से अदब से बात करते हैं, ऐसा ही अगर हम छोटे लोगों से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ऐसा सुब्रतो बागची विश्वास करते हैं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर सबॉर्डिनेट्स देन योर सुपीरियर्स। आप अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट तो देते ही हैं, शायद डरते होंगे उनसे, शायद चापलूसी करते होंगे, पर सुब्रतो बागची कहते हैं कि जितना रिस्पेक्ट आप अपने सुपीरियर्स को देते हैं, उतना ही, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट हमने अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को देना चाहिए। कॉर्पोरेट का इतना बेहतरीन अध्याय शायद किसी मैनेजमेंट की किताब में ये संस्कार नहीं मिलेंगे। While sitting around the chulha in the morning tea time, father would ask them to read aloud the editorial page, the statements, मुफस्सिल एडिशन। और सुबह जब चाय पीने का वक्त होता था, माँ चूल्हे पर खाना बनाती थी और चूल्हे के इर्द गिर्द सभी भाई और माता पिता बैठ जाते थे। और यही एक समय था कि पिता हम बच्चों को स्टेट्समैन नामक अखबार में जो मुफस्सिल एडिशन छपता था, उसका एडिटोरियल पढ़ने लगाते थे। डिलीवर्ड वन डे लेट, एक दिन बाद में हमें ये एडिशन मिलता था, पर पिता हमें ये कंपलसरी पढ़ाने लगाते थे। बच्चों को संस्कारित कैसे करना चाहिए, जिम्मेदारियां कैसे देनी चाहिए और आदतें कैसे लगानी चाहिए, लोग सुब्रतो बागची के पिता से आराम से सीख सकते हैं। They did not understand much what they were reading. बच्चे उस छोटी उम्र में एडिटोरियल में क्या पढ़ रहे थे समझ में नहीं आता था। आप पूछेंगे कि जब समझ में नहीं आता था तो पढ़ने क्यों लगाते थे? But the ritual was meant for them to know that the world was larger than corporate district, and the English he speaks today, despite having studied in Oriya medium, has to do with that routine. इसका जवाब सुब्रतो बागची यही देते हैं। अखबार पढ़ने का और समझने का मतलब कम था, पर कॉर्पोरेट के एक छोटे सी जगह के बाहर भी दुनिया है, इसका अंदाज हमें हो जाए, इसके लिए पिता हमें रोज पढ़ाते थे। और सुब्रतो बागची इस बात को कबूल करते हैं कि वॉट एवर इंग्लिश ही स्पीक्स टुडे, वॉट एवर द फ्लुएंसी ही हैज़ टुडे इन इंग्लिश, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रूटीन ही यूज्ड टू हैव विथ हिज फादर। अपने पिता के साथ जिस रूटीन को वो दोहराते थे, वही दोहराव, वही रिपीटेशन, वही रूटीन आज उनके अच्छे इंग्लिश के लिए जिम्मेदार है। भले ही उन्होंने शिक्षा ओरिया मीडियम से, वर्नाकुलर मीडियम से हासिल की हो, पर आज जो भी फर्राटेदार इंग्लिश सुब्रतो बागची बोल पाते हैं, क्रेडिट गोज टू हिज फादर and whatever the values he has imparted in him. After reading the newspaper aloud, they were told to fold it neatly. सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए नहीं, जोर जोर से पढ़ने के लिए कहा जाता था बच्चों को, ताकि प्रोनाउंसिएशन उनका दुरुस्त हो जाए। इतना ही नहीं, अखबार पढ़ने के बाद में उसकी घड़ी ठीक से करके रखना। बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर क्या संस्कार मिले हैं बच्चों को कि अखबार को भी अच्छी तरीके से, सलीके से घड़ी करके रखना चाहिए। ये संस्कार भी पिता ने दिए। फादर टॉट अ सिंपल लेसन, बिल्कुल आसान सा लगने वाला ये पाठ हमें पिता ने इतने आसानी से पढ़ाया। हिज फादर यूज्ड टू से, यू शुड लीव योर न्यूज़पेपर एंड योर टॉयलेट द वे यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इट। कितना आसान शब्दों में पिता ने समझाया कि अपने टॉयलेट को और अखबार को जैसा आप चाहते कि मिले, वैसा ही आपको छोड़ना भी चाहिए। That lesson was about showing consideration to others. बाकी लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए ये सबक काफ़ी था। Business begins and ends with that simple precepts. और बिजनेस गुरु बनने के लिए
कुछ ज़्यादा मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना सा चैप्टर, इतनी सी सीख अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट का अध्याय हमें मिल जाता है। When they ask about radio, each time his father would reply, बच्चे जिद करते थे कि पिता से रेडियो के लिए, घर में रेडियो चाहिए कम से कम गाना सुनने के लिए। वो समय ये था कि टीवी नहीं थे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, रेडियो तो बहुत दूर की बात है। रेडियो के लिए जब बच्चे जिद करते थे, पिता का जवाब उतना ही वंडरफुल हुआ करता था। They did not need one. पिता हमेशा कहते थे कि हमें किसी भी रेडियो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। He had already 5 radios, क्योंकि हमारे घर में 5 रेडियो ऑलरेडी है, alluding to his 5 sons. बच्चों की तरफ इशारा करके वो कहते थे कि यही मेरे 5 रेडियोस है, दिन भर बजते रहते हैं और किसी रेडियो की ज़रूरत नहीं। When he was asked about own house, the answer was, we do not need house of our own. पिता से जब घर के बारे में पूछते थे कि पापा अपना खुद का घर क्यों नहीं है, पिता का जवाब तैयार था। वो कहते थे कि मुझे घर की ज़रूरत नहीं, I already own 5 houses. मेरे 5 खुद के घर अभी मेरे पास है। बच्चों को देखकर यही इशारा करते थे। His replies did not gladden our hearts in the instant. पिता जो भी जवाब देते थे उससे दिल को ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी तुरंत। Nonetheless, we learned that the important not to measure personal success and senses of well-being through the material possessions. पर जिंदगी के बाद के अध्याय में ये बात समझ में आई कि सिर्फ मटेरियल वस्तुओं का, सिर्फ घर का, मकान का, जेरो जवाहरात का सिर्फ होना इम्पॉर्टेंट नहीं है और कामयाब होने की निशानी भी नहीं है। इससे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनका होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट हाउसेस सेल्डम केम विद फेंसेस। हम जहाँ भी जाते थे सरकारी क्वार्टर्स में रहना होता था और सरकारी क्वार्टर्स को कंपाउंड तो होते नहीं थे। मदर वुड नेवर स्लीप। दोपहर के समय में माँ कभी नहीं सोती थी। सुब्रतो इस बात को यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए बताते हैं। ये बात उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उनके माँ का भले ही उदाहरण हो, पर कई पीढ़ियों की माँओं के लिए सुब्रतो बागची आधुनिक माताओं के लिए भी ये बात करते हैं। उनकी माँ दोपहर में कभी नहीं सोती थी। क्या करते थे उस समय? दे प्लांटेड फ्लावरिंग बुशेस। फूलों के पौधे लगाते थे दिन भर। द टाइम दे ब्लूम्ड एट द टाइम हिज फादर ट्रांसफर ऑर्डर केम। और जब तक पौधे लगाते, कंपाउंड बनाते, फूल निकल आते और फिर से कोई ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता था। A few neighbors told his mother. कुछ पड़ोसी ने माँ से कहा भी था, why she was taking so much pain to beautify the government house. सरकारी मकानों को इतना सुंदर बनाने के लिए इतना वक्त देने की क्या जरूरत है? Why she was planting seeds that would not benefit the next occupant. अरे जब इस बीज के फल ही आपको मिलेंगे नहीं तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं आप? माँ से जब भी ये सवाल पूछता था, माँ का जवाब क्या होता था? His mother replied that it did not matter to her that she would not see the flowers in full bloom. She said, I have to create a bloom in desert, and whenever I am given a new place, I must leave it more beautiful than what I had inherited. माँ का भी जवाब उतना ही सादगी भरा और बहुत सुंदर जवाब हुआ करता था। जब उनसे पूछा जाता था कि खिले हुए फूल देखने के लिए, लगे हुए फल देखने के लिए आप रहते नहीं हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है, चले जाते हैं, तो घर को इतना सुंदर बनाने की ज़रूरत क्या थी? माँ कहती थी कि हर रेगिस्तान में, हर मरुस्थल में कुछ हरियाली पैदा करना हमारा स्वभाव है और जब भी मुझे कोई नई जगह मिलती है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है कि उस जगह को मैं छोड़ने के पहले और बेहतर और सुंदर बनाकर जाओ। एंड देन व्हाट आई इनहेरिटेड, जो मिला है विरासत में, उस विरासत को और बेहतर करके अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाना हर एक मनुष्य की यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन इन सक्सेस। और सुब्रतो बागची ये बताते हैं कि मेरे कामयाब होने का यही सबसे मूल मंत्र है, पहला मंत्र है कि जो भी जिम्मेदारी मिले, जो भी जगह आपको मिले, जैसे मिली है उससे बेहतर छोड़कर जाना है। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए क्या निर्माण करते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है।
इट इज़ वॉट यू लीव बिहाइंड दैट डिफाइन सक्सेस। आप जाने के बाद क्या छोड़ कर जाते हैं, इसी से साबित होता है कि आपने कितनी कामयाबी हासिल की है। His mother began developing a cataract in her eyes when he was very small. जब सुब्रतो बहुत छोटे थे तो माँ की आंखों में कैटरैक्ट, मोतियाबिंद का पड़ना शुरू हुआ था। It was during 1965, 1965 की बात है, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। And he had to read newspaper for mother. माँ बराबर पढ़ नहीं पाती थी और मैं पढ़ता था अखबार माँ के लिए। She and he discussed the daily news and built a bond with a larger universe. माँ और सुब्रतो दोनों अखबार पढ़ते समय दुनिया के बारे में डिस्कस करते थे और इसी से एक बड़े विश्व के बारे में सुब्रतो बागची को पता चलना शुरू हो गया था। जरा सी घटना, छोटी सी बात, माँ के लिए अखबार पढ़ना, पर न जाने कितनी बड़ी दुनिया से सुब्रतो का परिचय माँ ने इस बहाने कराया। लाल बहादुर शास्त्री, द देन प्राइम मिनिस्टर, कॉइन्ड द टर्म जय जवान जय किसान। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, एंड गैल्वेनाइज द नेशन इन अ पैट्रियोटिक फर्वर, और पूरी दुनिया, पूरे देश को देशभक्ति के रंग में सन डाला था। He imagined of becoming a spy in the war, but it could not come true. वो कोई गुप्तचर बनना चाहते थे, युद्ध में देश की मदद करना चाहते थे, पर सुब्रतो को यह मौका नहीं मिला। But he believes imagination is everything. पर कल्पना करने में क्या जाता है? सुब्रतो कहते हैं कल्पना ही तो सब कुछ है। If you can imagine a future, we can create it. अगर तुम भविष्य का सपना देख सकते हो तो ही भविष्य बना भी सकते हो। If we can create that future, other will live in it. अगर हमने अच्छे भविष्य का निर्माण किया तो बहुत सारे लोग इस अच्छे भविष्य में रह सकते हैं। That is the essence of success. यही कामयाबी का मूल मंत्र है, यही सार है। After cataract operation, within week of getting her sight back, mother developed a corneal ulcer and overnight became blind in both eyes. कैटरैक्ट का ऑपरेशन होने के बावजूद भी कॉर्नियल अल्सर हुआ आंखों में, और रात भर के अंतराल में ही माँ दोनों आंखों से अंधी हो गई। दैट वॉज 1969। शी डाइड इन 2002। माँ 1969 में कॉर्नियल अल्सर के शिकार हुई और 2002 में मृत्यु हुआ। दोनों आंखें चली गई थी। इन ऑल दोस 32 years ऑफ लिविंग विद ब्लाइंडनेस, 32 साल की बिना आंखों की जिंदगी में, she never complained about her fate even once. अपनी किस्मत को माँ ने एक बार भी दोष नहीं दिया। हम हर छोटी बात के लिए भगवान को दोष देते हैं, नियति के दोष देते हैं, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, पर 32 साल बिना आंखों के गुजारने के बावजूद भी सुब्रतो की माँ ने कभी शिकायत नहीं की। Curious to know what she saw with the blind eyes. सुब्रतो के मन में जिज्ञासा बनी रहती थी कि माँ बंद आंखों से क्या देख लेती थी, क्या कल्पना करती है। माँ ने जवाब दिया, नो आई डू नॉट सी डार्कनेस। मैं अंधेरा नहीं देखती बोले बंद आंखों से। आई ओनली सी द लाइट इवन विथ माई आईज क्लोज्ड। बंद आंखों से भी मैं रोशनी ढूंढती हूँ, रोशनी तलाश करती हूँ। Until she was 80 years of age, she did her morning yoga. 80 साल की उम्र तक माँ योगा वगैरह करती थी। आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी सफर है सुब्रतो बागची के परिवार का। Every day swept her own room and washed her own clothes. और अपने कपड़े खुद धोना, अपने लिए खुद सारी चीज़ें अरेंज करना, कपड़े भी धोना, खाना भी पकाना, रूम भी अरेंज करना, ये सारे काम माँ खुद ही करती थी। To me, success is about the sense of independence. सुब्रतो कहते हैं मेरे लिए कामयाब होने का मतलब होता है आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट हो जाना। इट इज़ अबाउट नॉट सीइंग द वर्ल्ड बट सीइंग द लाइट। दुनिया को मत देखो आंखों से, रोशनी देखो, प्रकाश देखो, यही तुम्हारे कामयाब होने की निशानी है। इन 1992 he had suffered a 3rd degree burn injury and was admitted to Safdarjung Hospital in Delhi. 1992 में पिता बहुत बुरी तरह से झुलस गए थे और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। The burn ward are both victims of the preparators
and dehumanize life at the worst. One morning, while attending to my father, he realized that the blood bottle was empty, and fearing that air would go into his vein, the nurse told me to do it myself. 1992 की घटना का बयान करते हैं जब पिता आग से पूरी तरह झुलस गए थे और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में उन्हें भर्ती किया गया था, तो वहाँ की अमानवीय परिस्थितियाँ देखकर आज भी उनको ऐसा लगता है कि किसी अस्पताल में जैसे शिकार के लिए पेशेंट्स को भर्ती कर दिया गया हो। एक सुबह जब वो पहुँचे, खून की बोतल लगी हुई थी और ख़त्म होने वाली थी। अगर पूरी तरह ख़त्म हो जाती तो शायद एयर बबल्स वेंस में चले जाते थे। वो डर गए थे। नर्स को आवाज़ दी, पर नर्स ने कहा, तुम खुद ही करो अपने हाथ से। इतनी बदतर हालत उस अस्पताल में सुब्रतो बागची ने देखी। फाइनली व्हेन ही रिलेंटेड एंड केम, माय फादर ओपन्ड हिज आईज एंड मर्मर्ड टू हर। पिता बर्निंग वार्ड में है, झुलसी हुई हालत में है। बड़े मुश्किल से नर्स को बुलाकर लाया। नर्स को जैसे ही सुब्रतो के पिता ने देखा, Why have you not gone home yet? अभी तक तुम घर क्यों नहीं गए? Here was a man on his deathbed, जो मनुष्य मृत्युशैया पर था, अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा था। वो ये भी परवाह कर रहा था कि नर्स को कितनी तकलीफ हुई होगी यहाँ दिन रात रहने में। वो उसके बारे में पूछते कि घर क्यों नहीं गई। More concerned about overworked nurse than his own state. अपनी हालत से नर्स की चिंता ज़्यादा थी सुब्रतो के पिता को। ऐसे पिता से बच्चे प्रेरणा नहीं लेंगे तो और क्या लेंगे। बागची was stunned at his stoic self. There I learned that there is no limit to how concerned you can be for another human being and what the limit of the inclusion is you can create. मनुष्य के दूसरों को चाहने की, दूसरों की परवाह करने की कोई सीमा नहीं हो सकती। यही पाठ पिता ने अस्पताल में भी मुझे सिखाया। His father died the next day, और दूसरे ही दिन पिता की मृत्यु हो गई। His father taught him that success is your ability to rise above your discomfort. पिता ने ये सिखाया कि तुम्हारे पास जितने भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर उठने का मतलब ही है कामयाब होना। Whatever may be your current state, आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, इन सारी परिस्थितियों से लड़कर अगर आप ऊपर उठ सकते हैं तो ही आप कामयाब इंसान कहेंगे। You can, if you want, raise your consciousness about your immediate surroundings. अपने इर्द गिर्द की परवाह ना किए हुए अपने कॉन्शियस से वादा करो, अपने आप से ये वादा करो और उठ जाओ। Success is not about building material comforts. कामयाबी का मतलब सिर्फ मटेरियल बिल्डिंग्स और मटेरियल कंफर्ट्स निर्माण करना नहीं है। द ट्रांजिस्टर एंड दैट नेवर कुड बाय और द हाउस दैट नेवर ओन्ड हिज सक्सेस वर्थ अबाउट द लीगेसी ही लेफ्ट। पिता ने बिल्डिंगें खड़ी नहीं की, पिता ने बच्चों के लिए रेडियो नहीं खरीदे, ट्रांजिस्टर नहीं खरीदे, पर जो बच्चों के लिए वो सौगात छोड़ के गए हैं, जो लीगेसी छोड़ के गए हैं, जो विरासत छोड़ के गए हैं, बस वही धन संपत्ति इन बच्चों के लिए है। My father was a fervent believer in the British Raj. My mother was exact opposite. पिता ब्रिटिश राज का समर्थन करते थे, माँ इसके विपरीत थी। When Subhash Bose quit the Indian National Congress and came to Dhaka, mother then schoolgirl garlanded him. जब ढाका वेस्ट बंगाल सुभाष चंद्र बोस चले गए थे इंडियन कांग्रेस छोड़कर, तब माँ ने स्कूल गर्ल जब थी तब सुभाष चंद्र बोस को हार भी पहनाया था। She learned to spin खादी, खादी बुनना भी सीख गई थी माँ, and join an underground movement, और भूमिगत जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो शामिल भी हुई। In them they learned the power of disagreement. पिता का स्वभाव अलग, माँ का स्वभाव अलग, पर दोनों एक बात को इस परिवार में सीख गए थे कि दोनों के एक साथ रहने के बावजूद भी डिसएग्रीमेंट का पावर क्या होता है। ऑफ डायलॉग एंड द एसेंस ऑफ लिविंग विद डाइवर्सिटी इन थिंकिंग। अलग अलग सोच रहने के बावजूद भी एक दूसरे के विचारों को आदर करना हमने माँ बाप से ही सीखा। At the age of 82, mother had a paralytic stroke and was laying in the government hospital in Bhubaneswar. 82 साल की उम्र में माँ को पैरालिसिस का अटैक आया और वो उस समय
सरकारी अस्पताल में थी भुवनेश्वर में, एंड इवेंचुअली बागची हैड टू रिटर्न टू वर्क, और सुब्रतो को उस रात वापस भी आना था। While leaving her behind, he kissed her face. जब वो छोड़कर वापस जा रहे थे तो माँ के माथे को चूमा। In the paralytic state and a garbled voice, she said, इस अवस्था में भी माँ ने कहा, Why you are kissing me? Go kiss the world. मुझे क्यों चूमता है? जाओ पूरी दुनिया को चूमो। A woman who came to India as a refugee, जो एक रेफ्यूजी के तौर पर बांग्लादेश से भारत आई थी, raised by widowed mother, एक विधवा माँ ने जिसका पालन पोषण किया था, no more educated than high school, married to anonymous government servant, एक अनजान सरकारी व्यक्ति से शादी कर ली, ज़्यादा शिक्षा भी नहीं, at least लास्ट सैलरी वॉज ₹300 और पिता की आखिरी तनख्वाह थी सिर्फ ₹300, रॉब्ड ऑफ हर साइड, आंखें भी खो गई थी, बाय द फेट एंड क्राउन बाय एडवर्सिटी, और सारी जिंदगी सिर्फ परिस्थितियों से झगड़ती गई। वॉज टेलिंग द राइटर टू गो एंड किस द वर्ल्ड। जिस माँ ने इतनी तकलीफें झेली वो अपने बच्चे को क्या सीख दे रही थी? जाओ पूरी दुनिया को चूमो, पूरी दुनिया को आलिंगन लगाओ। सक्सेस टू मी इज अबाउट विजन। मेरे लिए कामयाबी एक दृष्टिकोण है। इट इज द एबिलिटी टू राइज अबव द नियरनेस ऑफ पेन। सारे दुख से, सारे दर्द से ऊपर उठने का नाम ही एबिलिटी है, योग्यता है। इट इज अबाउट इमेजिनेशन, इट इज अबाउट sensitivity to small people, it is about building addition, it is about connectedness to larger world existence. सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखना, कल्पनाओं का विस्तार करना, अपने से छोटे लोगों के बारे में सेंसिटिव रहना। इट इज़ अबाउट द पर्सनल फर्मनेस, ये अपने खुद के फर्मनेस से बिलीव करना। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक मोर टू लाइफ दैन यू टेक आउट ऑफ इट। जिंदगी से जितना लेते हो उससे ज़्यादा जिंदगी को लौटाना। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस विद ऑर्डिनरी लाइफ। आम जिंदगी को जीने वाले लोगों के साथ रहकर कुछ खास हो जाना, इसी का नाम सक्सेस है, इसी का नाम कामयाब इंसान है। ऐसा सुब्रतो बागची इस अनुभव के द्वारा हम सबसे कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो केयरफुली, and all the best for your personal life also. Hope you will get inspiration out of the story and will flourish in the life Subrata Bagchi. Thank you very much.